ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੈਟਰਡੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੁਆਰਾ 74th ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਮੰਡੇ ਅੱਜ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ? ਜੈਫ ਬੈਜ਼ੋਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 25 ਫੈਬਰਰੀ 2021। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ PM ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ 201.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। RBI ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ R ਗਿਰੀਧਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰ ਆਵਰ ਨੋਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰ ਆਵਰ ਨੋਜ਼। ਅਨੁਰਾਧਾ ਘੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ The After Life of Silence, Still Lives of Jogan Chaudhary. The After Life of Silence, Still Lives of Jogan Chaudhary. NSO National Statistical Office, NSO ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ GDP ਦਾ -7.7%। ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ -7.7% 2020-21 ਦੇ ਲਈ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅੰਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਂਥ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜ ਅਈਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ CIO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ US ਆਰਮੀ ਦੇ। ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਰਾਜ ਅਈਅਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਫਰਸਟ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ। ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਟੂ ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਮੋਗਾਦਿਸ਼ੂ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ। US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ
सुधांशु धूलिया चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए गुवाहाटी हाई कोर्ट के। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए ने सिक्किम हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर माइकल किंडो जो कि ओडिशा तो बिलोंग करते हैं, इन्हों की रीसेंटली डैथ हो गई है। यह 1975 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पार्ट से मैंबर से और इन्हों द्वारा अर्जुन अवार्ड दिता गया 1972 के 1972 इन्हों अर्जुन अवार्ड भी दिता गया। साउथ अफ्रीका 1.5 मिलियन डोसिस का एग्रीमेंट साइन किया गया कोविड-19 वैक्सीन का। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 1.5 मिलियन डोसिस के लिए एग्रीमेंट किहड़ी कंट्री ने साइन किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाल। तो साउथ अफ्रीका ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हैडकुआटर कित्थे है? तो पुणे दे विच है। नेक्स्ट है इंडिया और फ्रांस द्वारा एनुअल स्ट्रैटेजिक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली के विच। ठीक है जी। इंडिया वालों NSA अजीत डोवल नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इंडिया अनाउंस्ड ग्रांट ऑफ 44.13 मिलियन नेपाली रुपीज़। इंडिया ने 44.13 मिलियन की नेपाली रुपीज़ की ग्रांट अनाउंस की है किसके लिए? श्री महादेव हायर सैकेंडरी स्कूल। श्री महादेव हायर सैकेंडरी स्कूल प्रोजैक्ट है नेपाल के हुमला दे विच बनाया जाना है, उस दे विच लैब और लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाने के लिए। अ प्रोटेस्ट नेम्ड कैपिटल प्रोटेस्ट डायरैक्टली पूछा जाएगा किहड़ी कंट्री दे विच किया गया? तो USA दे विच। ठीक है जी यार। अरुंधति और मैत्राई 2 स्कीम्स किहड़ी स्टेट दे विच लॉन्च कीतियां गईयां? तो इन्हों करनाटका दे विच लॉन्च किया गया जिसके अंदर EWS ब्राह्मण वूमेन इन्हों 25,000 रुपये दिते जाएंगे और 3 लाख रुपये का बॉन्ड दिता जाएगा अगर इन्हों की शादी इन्हों की मैरिज इन्हों की ही कम्यूनिटी दे विच हुंदी है। केरला गवर्नमेंट विल अनाउंस 1000 ऑफिसिस एज ग्रीन ऑफिसिस। केरला गवर्नमेंट द्वारा 1000 ऑफिसिस नूं ग्रीन ऑफिसिस अनाउंस किया जाएगा रिपब्लिक डे वाले दिन। यूपी उत्तर प्रदेश के शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने यूपी के शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक नूं फर्स्ट अर्बन कोऑपरेशन बैंक बनाया गया है। फर्स्ट ऐसा अर्बन कोऑपरेशन बैंक बनया है जिसनों स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिले। पहला अर्बन कोऑपरेशन बैंक इंडिया का जिसनों स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिता गया, लाइसेंस दिता गया है। तो की नाम है उसका? शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। डायरैक्टली पूछा जा सकता है इसका हैडकुआटर कित्थे है? यूपी दे विच है। ठीक है जी। स्टैटिक पोर्शन दे विच फोक डांस डिस्कस कर रहे हैं। तो यूपी दे विच नौटंकी कई बार पूछा गया है, नौटंकी कित्थे दी है? तो यूपी दी। रसीला, झोरा और चपेली, इस तो अलावा कत्थक डांस फॉर्म हर एक नूं पता होएगा यूपी का क्लासिकल डांस है कत्थक। उत्तराखंड चोलिया, जागर्स, थाली एंड बरादा नाट। चोलिया, जागर्स, थाली एंड बरादा नाट। वेस्ट बंगाल जात्रा कई बार पूछा गया, जात्रा फेस्टिवल भी और जात्रा डांस फॉर्म भी। छाओ एंड काथी वेस्ट बंगाल। त्रिपुरा होजागिरी डांस फॉर्म त्रिपुरा का फोक डांस है। तेलंगाना की अगर आप गल करते हैं पैरिनी और लंबादी, पैरिनी डांस फॉर्म और लंबादी डांस फॉर्म किहड़ी स्टेट दे विच ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? तेलंगाना दे विच। ठीक है जी याद रखांगे। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल, फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। तो विच डे इज ऑब्जर्वड एज प्रवासी भारतीय दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस है जिहड़ा एक किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इस दिन नूं 9 जनवरी नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। इससे रिलेटेड जिन्ने भी फैक्ट सीगे आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसनूं महात्मा गांधी की वापसी 1915 के जी वापसी की साउथ अफ्रीका तो इस करके ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है।
2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ NRI ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ ਜਾਂ NRI ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਕਿ 16th ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 16ਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੀਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸੁਰੀਨਾਮੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੰਦਰਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸੁਰੀਨਾਮੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹੀ ਚੰਦਰਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥਸ ਦੀ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਵਾਲੇ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਯੂਥ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ, ਇਹ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਯੂਥ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯੂਥ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP। ਸ਼੍ਰੀਪਤੀ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਰਥ ਗੋਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर डिफेंस। जितेंद्र सिंह डोनर मिनिस्टर ने, डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर ने, और जम्मू एंड कश्मीर दे उधमपुर तो लोक सभा MP ने। जी कृष्णा रेड्डी की अगर आप गल करते हैं तो जी कृष्णा रेड्डी अपने डिफेंस होम मिनिस्ट्री के डिप्टी ने, डिप्टी होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी कृष्णा रेड्डी। तेलंगाना तो लोक सभा MP ने। हरदीप सिंह पुरी की अगर आप गल करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने। इस तो इलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री तो इलावा इन्होंने भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, और राज्य सभा MP ने उत्तर प्रदेश तो। ठीक है जी, न्यूज़ नूं थोड़ा डिटेल दे भी डिस्कस करते हैं। तो यह दिन कदों ऑब्जर्व किया गया? 8 जनवरी 2021 नूं। थीम इंपोर्टेंट रहेगी तो ब्रिंगिंग टुगैदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। ब्रिंगिंग टुगैदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। ठीक है जी, इसी दे नाल चीफ गेस्ट इत्थे भी एक स्पैशल गेस्ट सीगे, कौन सी? फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर न्यूजीलैंड दे प्रियंका राधाकृष्णन। नाम डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन डायरैक्ट भी पूछा जा सकता है कि दोबारा हाईलाइटेड आया है।
कि पहले इंडियन ओरीजन मिनिस्टर न्यूजीलैंड दे विच कौन अपॉइंट किए गए सी? प्रियंका राधा कृष्णन अपॉइंट किए गए सी। ठीक है जी। न्यूजीलैंड दे विच हाल ही दे विच इलैक्शनस भी होए सी, तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखांगे, जैकिंडा एंडर्न, जैकिंडा एंडर्न। ठीक है, दोबारा री इलैक्ट किए गए सी, नाम इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखांगे। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द धर्मा फॉरेस्ट? द धर्मा फॉरेस्ट एक बुक है, इस दे ऑथर कौन ने? इस बुक के ऑथर कौन ने, किन्ना द्वारा इस बुक को लिखा गया है? इस बुक के ऑथर ने कीर्थिक ससिंद्रन, कीर्थिक ससिंद्रन द्वारा एक बुक लिखी गई जिस बेसिकली जिसदे विच कुरुक्षेत्र रिलेटेड है। ठीक है, जी कुरुक्षेत्र वॉर सी या महाभारत के रिलेटेड है, तब धर्मा फॉरेस्ट, कीर्थिक ससिंद्रन। ठीक है जी। इस तो अलावा दो होर इंपोर्टेंट बुक्स अपनी स्किप हो गई सी, डिस्कस करांगे उसनों। इस तो अलावा अगर आर गिरीधरन और अनुराधा घोष, हुणी इन्हों का नाम आप क्विक रिवीजन के डिस्कस करके हटे हैं। आर गिरीधरन RBI के जनरल मैनेजर, जिन्हों द्वारा राइट अंडर आवर नोज बुक लिखी गई। और अनुराधा घोष द्वारा जी बुक लिखी गई सी आफ्टर लाइफ ऑफ साइलेंस। निधि वधेरा द्वारा एक बुक लिखी गई रोमांसिंग टारगेट्स। ठीक है, बुक का नाम याद रखेंगे, निधि वधेरा द्वारा। अमृत राज द्वारा जी बुक लिखी गई है इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। इस बुक को किन्ना द्वारा लिखा गया? तो अमृत राज द्वारा इस बुक को लिखा गया। ठीक है, दो बुक्स अपनी स्किप हो गई सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पंजाब नैशनल बैंक PNB, पंजाब नैशनल बैंक ने एक IIT के नाल MOU साइन किया। किस दे लई? एक तो IIT के नाल MOU साइन किया, दूजी फर्स्ट फाउंडेशन के नाल, फर्स्ट इंस्टीट्यूट कह सकांगे। तो इसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टैक्नोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म के इसनूं फर्स्ट किया जाता है फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टैक्नोलॉजी। किस दे लई? ताकि एक फिनटैक इनोवेशन सेंटर लगाया जा सके इंस्टीट्यूट के जिहड़े इंस्टीट्यूट के नाल MOU साइन किया गया। तो किहड़े दे नाल? IIT कानपुर के नाल। IIT कानपुर के नाल इस एग्रीमेंट में साइन किया गया ताकि एक फिनटैक इनोवेशन सेंटर। ठीक है, हुण क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि पंजाब नैशनल बैंक के नाल ही पूछा जाए, क्वेश्चन डायरैक्टली पूछा जा सकता है कि किहड़े इंस्टीट्यूट के फिनटैक इनोवेशन सेंटर लगाया जाना है। ठीक है, तो IIT कानपुर। किहड़े बैंक की हेल्प के नाल लगाया जाना है? तो पंजाब नैशनल बैंक। किसी भी तरीके नाल क्वेश्चनस नूं चेंज करके पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो हर एक तरीके नाल अपने याद होना चाहिए। इस तो इलावा एक न्यूज़ IIT खड़गपुर रिलेटेड है, डिस्कस करांगे। पंजों दी पंजों IIT अगर कुछ 6 महीने की गल करते हैं तो इस गैप दे विच किते ना किते न्यूज़ दे विच सीगियां कुछ ना कुछ इन्हां द्वारा डेवलप किया गया। कोविड-19 के लिए हो गया या डिफरेंट तरीके की टैक्नोलॉजीज न्यूज़ के विच आपां डिस्कस कीतियां हुई ने। सो डेली होमवर्क है, तुसीं हर एक दी एक न्यूज़ दसनी है और पूरा एक डिटेल्ड आंसर देना, ना कि अलग अलग कमेंट करने ने। एक सिंगल डिटेल्ड आंसर कमेंट बॉक्स के विच देना। दूसरी न्यूज़ है जी डिस्कस करते हैं IIT खड़गपुर रिलेटेड है कि IIT खड़गपुर ने की बनाए? एक ड्रोन्स बनाए ने 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट इन टू हेल्प एज एयरबॉर्न मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टावर्स। बेसिकली कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लेस है, उस प्लेस दे विच तूफान वगैरह आया, कोई नैचुरल डिजास्टर आया, कोई फ्लड है, ठीक है, तो उत्थे दी जिहड़ी कम्युनिकेशन सर्विसिज ने वो खराब हो जांदियां ने। ठीक है, हुण अर्थक्वेक होगा किसी भी तरीके का, तो जी कहांगे कम्युनिकेशन सर्विसिज खराब हो गई तो उसनूं चलाउण दे लई एज ए टावर के तरीके नाल काम करनगे। ठीक है, और वह सप्लाई प्रोवाइड करनगे। ठीक है जी, तो इसी तरीके नाल 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट इन जो कि एयरबॉर्न मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टावर्स के तौर पर काम करनगे। ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक साइंड MOU विद NAB फाउंडेशन।
NAB नैब फाउंडेशन, सब तो पहले तो नैब फाउंडेशन पता होनी चाहिए की चीज़ है, ये सबसिडरी है नाबार्ड की, नाबार्ड की सबसिडरी है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। लोन प्रोवाइड करवाने के लिए सैल्फ हैल्प ग्रुप्स नूं लोन प्रोवाइड करवाने के लिए किहड़े बैंक ने नैब फाउंडेशन के नाल एग्रीमेंट साइन किया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह एग्रीमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साइन किया, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हैडकुआटर पूछा जा सकता तो मुंबई के विच है। IDFC फर्स्ट बैंक का हैडकुआटर पूछा जा सकता तो मुंबई के विच है। इंडियन बैंक का हैडकुआटर अगर पूछा जाता है तो यह चेन्नई के विच है, कित्थे है? चेन्नई के विच। बैंक ऑफ बड़ौदा का हैडकुआटर पूछा जाता तो वडोदरा गुजरात के विच है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर हैडकुआटर पूछा जाता तो यह बेंगलुरु के विच है, ठीक है जी। इस तरीके नाल हैडकुआटर्स इंपोर्टेंट बनते हैं बैंकिंग सैक्टर के, याद रखांगे। हुण एक न्यूज़ IDFC फर्स्ट बैंक रिलेटेड भी है, डिस्कस करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक न्यूज़ आप डिस्कस कर लीए। IDFC फर्स्ट बैंक का IDFC म्यूचुअल फंड है, IDFC म्यूचुअल फंड द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन पैसों को रोको मत लॉन्च किया गया IDFC म्यूचुअल फंड द्वारा, ठीक है जी। हैडकुआटर मुंबई के विच है और IDFC फर्स्ट बैंक के MD ने जिहड़े वी वैद्यनाथन ने। इस तो इलावा IDFC फर्स्ट बैंक के एंबेसडर याद रखांगे अमिताभ बच्चन नूं अपॉइंट किया गया सी, अमिताभ बच्चन नूं अपॉइंट किया गया सी, ठीक है जी। नेक्स्ट है फूड प्राइस इंडेक्स है जिहड़ा ये किन्ना द्वारा किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है जी। तो फूड प्राइस इंडेक्स फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेसिकली जिस तरीके जी GST बारे आप डिस्कस किया हुआ कि GST की कलैक्शन हर मंथ के एंड दे विच अनाउंस की जाती है, उसी तरीके नाल फूड प्राइस इंडेक्स है जिहड़ा हर मंथ अनाउंस किया जाता है, ठीक है जी। अपने लिए डायरैक्टली इंपोर्टेंट रहेगा कि फूड प्राइस इंडेक्स किन्ना द्वारा लॉन्च किया जाता है? FAO द्वारा, ठीक है। बेसिकली इस बार थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड रहा सी न्यूज़ के रहा कि 7 टाइम्स जी बेस ईयर तो 7 टाइम्स जी कहांगे कि फूड प्राइसिस ने इंक्रीज़ हुए ने, ठीक है। COVID-19 के कारण डिफरेंट प्राइसिस लगातार इंक्रीज़ होंगे जा रहे हैं चीज़ों के, जिन्होंने डिफरेंट सीरीयल्स आ जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं या नॉन वेज चीज़ा आ जांदियां ने, ठीक है, या ऑयल्स वगैरह आ जाते हैं। अपने लिए यह चीज़ां इंपोर्टेंट नहीं बननियां। डायरैक्टली वन लाइनर के याद रखांगे फूड प्राइस इंडेक्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस तो इलावा इसके फैक्ट्स इंपोर्टेंट बन गए कि यह 16 अक्तूबर 1945 के बनाया गया सी। लास्ट ईयर 2020 के इसने 75th एनीवर्सरी ऑबजर्व की है। इस करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 रुपीज़ का एक कमैमोरेटिव कॉइन भी इस दिन लॉन्च किया सी, ठीक है। रोम इटली के विच इसका हैडकुआटर है। क्यू डोंगियू ने जिहड़े ये इसके हैड ने, ठीक है जी। इस तो इलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हैडकुआटर भी रोम इटली के विच है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिलेटेड याद रखांगे इसनूं नोबल पीस प्राइज़ दिता गया 2020 का। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नोबल पीस प्राइज़ 2020, ठीक है जी। इस तो इलावा एरीदा और एयर इंडिया दोनों ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, एयर इंडिया रिलेटेड 2 न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले एरीदा की फुल फॉर्म है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा MOU साइन किया गया, एग्रीमेंट साइन किया गया है नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन के नाल, NHPC के नाल, नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया फॉर प्रोवाइडिंग इट्स टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। एयर इंडिया 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहली एयर इंडिया की वूमेन पायलट जोया अग्रवाल और उसकी टीम द्वारा हिस्टरी क्रिएट की गई बाय बिकमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वूमेन पायलट टीम। पहली ऐसी सारी वूमेन पायलट टीम जिसने नॉर्थ पोल के उत्तों फ्लाइट किया है और वर्ल्ड द
ਲੌਂਗੈਸਟ 에ਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਟੂ ਬੈਂਗਲੋਰ 16,000 ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ट्रैवल किया है फर्स्ट ऑल वूमेन पायलट टीम ने। ठीक है जी, हैडेड बाय कैप्टन जोया अग्रवाल। एयर इंडिया ही पहली ऐसी एयरलाइन बनी है जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने यूज़ किया। इंडिया की पहली ऐसी एयरलाइन जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने यूज़ किया टू क्लीन एंड डिसइनफेक्ट एयरक्राफ्ट बाय यूजिंग एन यूवी रोबोटिक डिवाइस। ठीक है जी, नेक्स्ट है एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स to increase its presence and collaborations in India's northeast, Israel has appointed whom as an honorary consul। बेसिकली इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ये जो इलाका है इंडिया का, अगर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है इत्थे अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए इजराइल द्वारा एक परसन को अपॉइंट किया गया एज ए ऑनररी काउंसिल। ठीक है, एज ए रिप्रजेंटेटिव कह लें, पर जो ऑनररी काउंसिल वर्ड है वो अच्छा वर्ड रहेगा इस दे लिए। तो किन्हों अपॉइंट किया गया? जॉयश्री दास ने जिहड़े इन्हों अपॉइंट किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे वूमेन ने इंपोर्टेंट रहेगा नाम। इस तो इलावा बाकी चारों परसनस न्यूज़ दे विच ने डिस्कस करते हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, याद रखांगे इंपोर्टेंट रहेगी। और करंसी की गल करते हैं न्यू शकील करंसी। शमोना गुहा तो यूएसए प्रेसिडेंट इलैक्ट, अगर जो बिडन की गल करते हैं यूएसए प्रेसिडेंट, इन्होंने द्वारा काफ़ी इंडियन अमेरिकनस नू डिफरेंट यूएसए की पोस्ट के विच रखा जा रहा है। ठीक है, और कुछ पोस्ट तक काफ़ी कहांगे कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट ने और इंडिया लैवल के लिए अगर आप गल करते हैं एक प्राउड मूवमेंट है। तो इन्हों के नाम ने जोड़े इंपोर्टेंट रहने पूछे जा सकते हैं। तो शमोना गुहा नू सीनियर डायरैक्टर फॉर साउथ एशिया इन नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जिस तरीके इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल है उस तरीके यूएसए की जी नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उस दो इंडियन अमेरिकन नू अपॉइंट किया जा रहा है। दोनों के नाम शमोना गुहा और तरुण छाबरा। ठीक है, तो शमोना गुहा नू सीनियर डायरैक्टर फॉर साउथ एशिया और तरुण छाबरा नू सीनियर डायरैक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नैशनल सिक्योरिटी। ठीक है जी, डिफेंस सैक्टर दे विच नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दो इंपोर्टेंट मैंबर्स इंडियन अमेरिकन। नैक्सट है आदित्य पुरी का नाम आप कई बार डिस्कस किया होया। HDFC बैंक के CEO रह चुके हैं। ठीक है, इन्हों तो बाद शशिधर जगदीशन या कह सकते हैं या शशिधर जगदीशन को अपॉइंट किया गया। तो आदित्य पुरी ने जिहड़े इन्होंने स्ट्राइड्स एक फार्मा कंपनी है जो कि जिसका हैडकुआटर बेंगलुरु दे विच है, इसके एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किए गए। ठीक है जी, क्योंकि इन्हों का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट है और इस करके इन्हों की अपॉइंटमेंट भी इंपोर्टेंट रहेगी। नैक्सट है RS चौहान। आप डिफरेंट चीफ जस्टिस डिस्कस कर रहे हैं। तो जस्टिस RS चौहान को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया उत्तराखंड हाईकोर्ट के नवे चीफ जस्टिस RS चौहान। नैक्सट है इंडिया विल चेयर विच ऑफ द सब्सिडरी बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC यूनाइटेड नेशनस की जी सिक्योरिटी काउंसिल है। कल भी इस रिलेटेड आप डिस्कस किया हल्की जी न्यूज़ कि इंडिया केड़ी कमेटी की चेयरमैन बन रही है, केड़ी सब्सिडरी बॉडी की चेयरमैन बनेगी। ऑल ऑफ दिस काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शंस कमेटी और लीबिया सैंक्शंस कमेटी। काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शंस कमेटी और लीबिया सैंक्शंस कमेटी है जी, इन्होंने तीनों की इंडिया है जी चेयरमैन बनेगी। ठीक है जी, इसनों अनाउंस किया गया TS त्रिमूर्ति द्वारा। TS त्रिमूर्ति कौन ने? TS त्रिमूर्ति इंडियन रिप्रजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशंस दे विच। ठीक है जी, इस तो इलावा कदों बनेगी? तो 2022 दे विच बनेगी। ठीक है जी, इस तो इलावा एक हिडन फैक्ट है, एक न्यूज़ नहीं है हालांकि, काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा नाम की है। काउंटर टेररिज्म कमेटी नूं एक होर नाम दे नाल जानिया जांदा है UNSC 1373।
याद रखांगे UNSC 1373 किसनू कहा जाता है? यूनाइटेड नेशनस की काउंटर टैररिज्म कमेटी नू कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली जी एक कमेटी सी कदों बनाई गई सी? 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर सुनिया होएगा तुसीं कि 9/11 हर एक ने सुनिया होएगा कि USA ਦੇ ਵਿੱਚ 9 नवंबर 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ अटैक होया सी। ठीक है, उस अटैक तो बाद एक काउंटर टैररिज्म कमेटी बनाई गई सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा। ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 11 लैंग्वेजेस। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च की गई 11 लैंग्वेजेस दे विच। बेसिकली एक एप्लीकेशन कहांगे कि लॉन्च की गई है, किन्ना द्वारा लॉन्च की गई? प्रकाश जावेदकर एज एन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इन्हां द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। इस तो इलावा इन्हां दे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ने, और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का भी एडिशनल चार्ज है प्रकाश जावेदकर लवे। राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र का। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने, इस तो इलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री भी, इन्होंने दोनों का एडिशनल चार्ज भी इन्होंने लवे। ये भी राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। बाकी ऑप्शन आप कई बार पहले डिस्कस किए हुए हैं, दोबारा नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, हैल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया एक सर्वे किया गया कि किन्ने लोगों की एज किस तरीके किन्नी हो जाएगी। तो यह इंडिया का पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे है जिसके अंडर अनाउंस किया गया कि नंबर ऑफ एल्डरली पीपल इन इंडिया विल ट्रिपल बाय 2050, कि जिन्नी हुण एल्डरली पीपल की एज है, जिन्ने लोग ने उन्होंने एज ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, 3 गुना लोग इंक्रीज हो जाएंगे एल्डरली यानी कि बुजुर्ग लोग। ठीक है, यानी कि 60+ वाले लोग 3 गुना हो जाएंगे जिन्ने हुण है। ठीक है जी, क्योंकि जिस हिसाब नाल कहा जा रहा है कि डेथ रेट नूं रिड्यूस किया जा रहा है और बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है। इत्थे एक कहांगे बिल्कुल हिडन फैक्ट, बहुत ही घट जगह पर तुहानूं ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि इस डाटा दे विच हर एक स्टेट तो डाटा लिता गया एक्सैप्ट सिक्किम। हर एक स्टेट और UT तो डाटा चक्या गया है एक्सैप्ट सिक्किम। इस सर्वे सिक्किम दे विच नहीं किया गया। ठीक है, यह जी खबर है, ये जी पॉइंट है, ये पॉइंट तुहानूं काफ़ी घट जगह पर पता लगेगा, जरूरी है याद रखांगे। इस तो इलावा किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा एक रेजिडेंशियल होस्टल का इनोग्रेशन की गई है डॉक्टर करानी शूटिंग रेंज दिल्ली दे विच। ठीक है, क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जाएगा डॉक्टर करानी शूटिंग रेंज कित्थे है? डॉक्टर करानी शूटिंग रेंज कित्थे है? तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सफर्ड the biggest economic impact in the world in 2020 due to internet shutdown as per the report of UK based firm top 10 VPN कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेट शटडाउन ਦੇ ਕਰਕੇ सब तो ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान ਕਿਹੜੀ कंट्री ਨੂੰ ਹੋਇਆ? तो इंडिया ਨੂੰ। किस दे अनुसार? UK ਦੀ टॉप 10 VPN फर्म के अनुसार, कंपनी के अनुसार। ठीक है जी, बेसिकली जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर हो गया या नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, ये कुछ ऐसी स्टेट्स ने जिन्हों के इंटरनेट को शटडाउन कर दिता जाता है। ठीक है, या फिर होर भी चीज़ां करके इंडिया के कई बार शटडाउन किया गया इंटरनेट। तो इन्हां चीज़ां करके इकनॉमिक नुकसान सब तो ज़्यादा, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर के हजे भी 3G चलाया जा रहा है, 2G चलाया जा रहा है, 4G सर्विसिज में हजे भी प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, तो इन्हां करके जो नुकसान होंगे इकोनॉमिक नुकसान होंगे सब तो ज़्यादा किहड़ी कंट्री में होया? 2020 के विच इंडिया। ठीक है जी, इस तो इलावा जापान और पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो जापान द्वारा 30 बिलियन येन
ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 2113 ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੋਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੋਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ। ਕਿੰਨੀ? 30 ਬਿਲੀਅਨ ਯੈਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2113 ਕਰੋੜ। ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕੀਓ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਡਕਟਿਡ ਟੈਸਟ of its indigenously developed Fateh-1 missile system with strike range of 140 km। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ Fateh-1 ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ खुद ने बनाया है। और ये मिसाइल सिस्टम है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि कहांगे 10 to 12 रॉकेट्स एक सिस्टम है जिस लगातार लॉन्च किए जा सकते हैं, ठीक है जी। और इस तो इलावा ये भी याद रखेंगे कि जी सिर्फ स्टेट एमरजेंसी है कोविड-19 के केसिस करके नहीं लगाई गई है, इस फाइनैंशियल क्राइसिस करके भी लगाई गई है, क्योंकि जापान द्वारा काफ़ी ज़्यादा जोड़ा कहांगे अमाउंट टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इंस्टॉल की गई है, यूज़ की गई है। क्योंकि अगर टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो इकोनॉमी इन्हों की इंक्रीज़ होएगी, तो इकोनॉमी इंक्रीज़ करने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट भी करनी पैंती है, तो प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दी गई है। और अगर इस टाइम टोक्यो ओलंपिक्स कैंसल होंगे ने तो जापान की जी इकोनॉमी है इन्हों के उत्ते काफ़ी ज़्यादा असर होएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल केड़ी स्टेट यूटी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंजाब द्वारा ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है जी। अगर आप गल करते हैं पंजाब द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की गई ने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिते गए हैं। डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरी डिटेल डिस्कस करांगे, क्योंकि पहले भी डिस्कस किया है कि अगर किसी स्टेट की कोई न्यूज़ आती है, किसी भी स्टेट की अगर कोई न्यूज़ आती है तो उस स्टेट की न्यूज़ स्कीम का सिर्फ नाम जरूरी होंगे, ठीक है। अगर वो पंजाब की कोई न्यूज़ है, स्कीम है, तो उसकी पूरी डिटेल जरूरी है, ठीक है। इस तो इलावा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई न्यूज़ है या स्कीम है, उसकी भी पूरी डिटेल जरूरी है, ठीक है। स्टेट के रिलेटेड सिर्फ स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। पंजाब की है, इस करके आप पंजाब के एग्जाम्स देने ने, क्वेश्चन डिटेल के पूछा जा सकता है, पूरी डिटेल डिस्कस करांगे। बाकी स्टेट्स के रिलेटेड भी काफ़ी न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा सैवरल स्कीम्स नूं लॉन्च किया गया। सब तो पहले धीआं दी लोहड़ी इस दे अंडर गर्ल्स नूं और उन्हां दी मदर्स नूं शगुन दिता जा रहा है 5100 रुपए का, और बेबी किट्स प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी। इसी दे अंडर फ्री सैनिटरी पैड्स दिते जाएंगे गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हाई स्कूल्स और कॉलेजेस दे गर्ल्स स्टूडेंट्स नूं सैनिटरी पैड्स दिते जाएंगे। दूसरी स्कीम बसेरा प्रोग्राम के अंदर स्लम डवैलर्स नूं होम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स दे विच, जिन्हां दे विच पटियाला भी सी, मोगा भी सी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ने, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं बनने, ठीक है जी। इसी दे नाल तीसरी स्कीम इन्हां द्वारा 75.64 करोड़ स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट रुपीज़ 75.64 करोड़ खर्च किए जाएंगे स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट से, जिस दे अंडर 96,000 मीटर्स लगाए जाएंगे PSPCL द्वारा, ਜਿਹੜੇ बिजली के मीटर होंगे ने 96,000 नवे मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है जी। चौथी स्कीम इन्हों द्वारा ही 2500 क्रिकेट किट्स स्पोर्ट्स और क्रिकेट किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही ने टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर नूं प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा
ई दाखिल पोर्टल है जिहड़ा ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया पंजाब के फूड सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। भारत भूषण आशू पंजाब की जिहड़ी कैबिनेट है इन्हां दे मिनिस्टर के नाम इंपोर्टेंट बनते हैं, जिन्हां दे विचों कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने भरत भूषण आशू। इन्हां द्वारा लुधियाना दे विच ई दाखिल पोर्टल नूं लॉन्च किया गया है टू फाइल कंज्यूमर कंप्लेंट्स। ठीक है जी। इसी दे नाल अगर आप गल करते हैं तो इत्थे स्पोर्ट्स की गल आई सी, स्पोर्ट्स किट्स की। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम इंपोर्टेंट बनेगा तो राणा गुरमीत सिंह सोडी। ठीक है। तो इसी तरीके नाल पंजाब के जिहड़े मिनिस्टर्स ने उन्हां दे नाम याद रखियो, इंपोर्टेंट बनणगे। ठीक है जी। आप पहले डिस्कस किए हुए ने। नैक्सट है पंजाब डिक्लेयर्ड होल स्टेट एज कंट्रोल्ड एरिया अंडर बर्ड फ्लू। आप डिस्कस किया कि बर्ड फ्लू फैल रहा है। बर्ड फ्लू डिफरेंट स्टेट्स के देखा गया है। हाल ही अगर आप गल करते हैं हरियाणा के भी देखा गया, उसके बारे भी डिस्कस करांगे। तो पंजाब ने की करा, पूरी स्टेट नूं कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर किया है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब ने की डिक्लेयर किया स्टेट नूं, स्टेट एमरजेंसी हो गया, ठीक है, या स्टेट डिजास्टर हो गया, या अपना आंसर होएगा कंट्रोल्ड एरिया। ठीक है जी। हरियाणा द्वारा बर्ड फ्लू का नवा स्ट्रेन देखा गया। ठीक है जी। अगर आप गल करते हैं बर्ड फ्लू का जो स्ट्रेन है उसका नाम है H5N1। H5N1 हरियाणा के भी जो बर्ड फ्लू का स्ट्रेन देखा गया वह है H5N8। ठीक है जी। नैक्सट है गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी द्वारा एक नवा बगसारा प्लांट नहीं है, प्रांत का मतलब होंगे फॉर एग्जाम्पल तालुका नूं इकट्ठियां करके प्रांत कहा जाता है। ठीक है। प्रांत तो बाद डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो अरमेली डिस्ट्रिक्ट दे विच एक नवी प्रांत बनाई जा रही है, बगसारा प्रांत। फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर, इसी दे नाल फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी, कांग्रेस दे बेसिकली अगर गल करते हैं इस पिछले मंथ के विच काफ़ी ज़्यादा लीडर्स की डैथ हुई है, जिन्हों के एक होर नाम जुड़ गया माधव सिंह सोलंकी जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के। माधव सिंह सोलंकी इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई। यूपी पहले नंबर पर रहा फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है जी, इसकी इंप्लीमेंटेशन के यूपी सब तो पहले नंबर पर रहे। ठीक है जी। इसी दे नाल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है जो इसके फैक्ट्स इंपोर्टेंट बन गए। ठीक है जी। आप पहले कई बार डिस्कस किए हुए हैं और कुछ आज का सैशन अपना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इस करके आप इसनूं डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नैक्सट है जम्मू कश्मीर लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया टू काउंटर करप्शन नूं काउंटर करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन किन्ना द्वारा लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा। इस तो इलावा जम्मू कश्मीर के रिलेटेड सेहत स्कीम याद रखांगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई सी। माई टाउन माई प्राइड इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया सी जम्मू कश्मीर के विच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ 40 कृषि संजीवनी वैन्स। 40 कृषि संजीवनी वैन्स नूं किन्ना द्वारा फ्लैग्ड ऑफ किया गया है? तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा द्वारा बेंगलुरु दे विच 40 कृषि संजीवनी वैन्स नूं फ्लैग्ड ऑफ किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा कर्नाटका के गवर्नर की गल करते हैं वाजूभाई बाला ने, यह भी याद रखांगे। ठीक है। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड भी न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा MOU साइन किया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नाल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स टू इंप्रूव इंग्लिश एफिशिएंसी नूं इंप्रूव करने के लिए टीचर्स नूं ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा। असम गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया टू टाइपिंग मिस्टेक है गिफ्ट खादी
ਖਾਦੀ ਕਲੋਥਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਰੀ ਇੱਕ ਸਿਲਕ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਾਦੀ ਕਲੋਥ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਅਸਮ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਦੀ ਕਲੋਥ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸਮ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਓਬਿਚੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰਾ ਘੋਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨੀਸ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨੀਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੈ। ਚਿਤਰਾ ਘੋਸ਼ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨੀਸ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਬ੍ਰੇਬੋਰਨ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 64th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਸਰੀ ਸਟੇਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ थोड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं कि स्टेट रैसलिंग एसोसीएशन द्वारा महाराष्ट्र द्वारा एक टूर्नामेंट कंडक्ट कराया जाता है महाराष्ट्र केसरी का, ठीक है। हुण क्वेश्चन नूं किस तरीके नाल पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट रहेगा कि केसरी टाइटल महाराष्ट्र केसरी एक स्पोर्ट टाइटल है, एक किस गेम दे विच दिता जाता है, तो रैसलिंग दे विच, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन रैसलिंग के लिए केसरी टाइटल है जिहड़ा किहड़ी स्टेट का एक इवेंट है, तो महाराष्ट्र का, ठीक है। दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इत्थे पूछे जा सकते हैं, याद रखांगे, ठीक है जी। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन दे विच काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ तकरीबन 30-35 प्लस न्यूज़ आपां डिस्कस कीतियां ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।